Okay, students, we were on departmental stores. What are these departmental stores basically? These departmental stores are those stores which specialize in wide variety of durable goods. Means आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए. ड्यूरेबल क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स So here we are using the word durable goods. Durable goods are basically those goods which have long shelf life. मतलब बहुत टाइम तक आप इन प्रोडक्ट्स को, इन गुड्स को मेंटेन कर सकते हो. जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, टीवी है और सारे ऐसे वाइट गुड्स हो गए, या आपको जो हाउस होल्ड यूज के लिए गुड्स चाहिए, पर्सनल गुड्स के लिए, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गए, शूज हो गए. मतलब इस तरह के बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं जो बहुत बड़ी रेंज आपको गुड्स की अवेलेबल करवाते हैं. And they are providing you the another important facility which they are providing you is that they are providing you different type of merchandise lines at affordable prices at one point only. Okay, तो वेरिएबल प्राइसेस की मतलब आपके लोअर से लेके हाईएस्ट लेवल तक की जो प्राइसेस हैं, हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है आपके पास, हर तरह की कैटेगरी का प्रोडक्ट अवेलेबल है वहां पे. So you can go easily at that particular store and look out for the goods which you are in need of. Okay. तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? यहाँ पिन से लेके एरोप्लेन तक ये कहा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सब कुछ मिलता है. इंडिया में वैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं है, जैसे स्पेंसर्स हो गए या वॉलमार्ट के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या अमेजन के स्टोर्स हैं. ओके. So if you find that Amazon Fresh stores which has been opened in America, they will provide you the food articles available. I am talking about just of one example because these departmental stores are totally different. So I am taking an example of Amazon Fresh. They are providing you groceries and food articles, and you will get food articles in those stores from any nation which is producing different type of products, goods, fruits, vegetables, groceries. So everything is available in that store. Same is the condition with the departmental stores. You want to have guns, you want to have ammunition, you want to have trekking suits, you want to have the mountaineering shoes, you want to have anything which you want to have. You want to have the best of the toys, stationaries, cosmetics. So what you can think of is available in those stores. That is what we talk about departmental stores. अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्यों बोला जाता है? इनको डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए बोला जाता है दैट देयर आर अंडर वन रूफ देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. Pharmaceutical is different, tires are different, auto spare parts is different, arms and ammunition is different, then explosives department is different. Okay, then you have your cosmetics is different, household products are different, stationery is different, books department is different. So every department has its own controlling features, and they have own system. And moreover, these departmental stores are not only having different departments, but also they provide you restroom facilities, parking facilities, recreation facilities, and hospitality facilities. Means lounge is there, bar is there, restaurants is there, restrooms are there, gaming zones are there. Everything is available under one roof. There, that is what a departmental store is. Okay. Now let's discuss about the features. First is that I have discussed that they provide you
travel inquiry means whether there is any travel facility available being created by these departmental stores, that is also availability. Moreover, if you want to ask them what goods are available, whether the goods which you are in need of are available in these stores or not, you can get that information. Another is they have the specialized information bureau over there. They have restaurant facilities available, they have restroom facilities available, so all that type of facilities. These are located in the center of city. Center of city does not means approachable area. Center of city means that is easily that is a place where a large number of population can be catered easily. You have to drive down to that particular place, which is generally located at a distance from city. It is not a neighborhood shop, but a shop which is located in an area where there is ample parking facility and various other storage, warehousing, everything facilities available. तो वहाँ ये located होते हैं. तो ये a hot center या center of city where large number of public can at one time gather and carry out the trading activity. Okay. They generally provide services to the customer which are generally of high class. यहाँ पे स्पेशली आपको ड्राइव डाउन करके जाना पड़ेगा, तो आपकी इतनी पेइंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि आप स्पेशली वहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे बाइंग एक्टिविटी करके आ रहे हो. अगर आपके पास इतनी परचेजिंग कैपेसिटीज नहीं है, you never go and visit these stores, because these stores are providing you a better facility, but you have to travel, and those who don't have the means to travel to those areas, they are not going to these departmental stores. That is the another important. So यहाँ price important नहीं है, यहाँ पे क्या है, quality is the major important aspect over here. Then another is these have a very large, these are very large in size and they work like a joint stock company. अगर कल को अलीबाबा अपना कोई जो जैकमा है अपना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलता है, तो अभी तो वो ऑनलाइन चल रहे हैं, या अमेज़न ऑफलाइन स्टोर खोलता है, तो दे विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल ऑनलाइन. ओके, तो वो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करेगी. अभी अलीबाबा ने जैसे एक आईपीओ लॉन्च किया, $34.4 बिलियन के उसका आईपीओ था, मगर उसको डिमांड आ गई $3 ट्रिलियन के की एप्लीकेशंस आ गई. तो ये है इन कंपनीज का काम. ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, बहुत बड़ा स्पेस होता है और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं. ये सारा इस तरीके से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम करता है. फिर ये आपके पास रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग दोनों फैसिलिटीज को कंबाइन करके अवेलेबल करवा रहे हैं. मतलब आपको रिटेलिंग एक्सपीरियंस भी है और स्टोरेज कैपेसिटीज भी इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएट की होती हैं, सो दैट द गुड्स आर अवेलेबल एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर इन नीड ऑफ. तो ये आपके पास है. सो यहाँ क्या है कि परचेजर डायरेक्ट परचेज कहाँ से करता है, प्रोड्यूसर से परचेज करता है, एंड देन दे स्टोर इट in their central warehouse, and from that it is transported to the warehouses of various other departmental stores. Okay, then they have a centralized purchasing system is there. Okay, so purchasing over here is centralized. मतलब आपके हेड ऑफिस में डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में, और किस किस स्टोर पे क्या क्या प्रोडक्ट्स जाएंगे. तो ये आपके पास सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम है. और इसमें ये आपके जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि दैट द गुड्स हैव बीन परचेज एंड दे विल बी मेड अवेलेबल एट वेरियस स्टोर्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स. ओके, तो ये आपके पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स का सिस्टम है. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट.
Okay. Next is departmental store advantages and disadvantages. First advantage is that these are buying at large scale. तो large scale से क्या होता है, economies of scale का benefit हो जाता है इन्हें. Economies of scale का मतलब है कि full utilization of resources is possible. अब कौन से रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये सारे पूरी तरह से यूटिलाइज होते हैं. तो पर यूनिट एज ए रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस. ठीक है जी. तो ये आपके पास एक एडवांटेज है लार्ज स्केल बाइंग का. फिर है शॉपिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर. दे प्रोवाइड वाइड variety of goods under one roof, as well as they provide facilities which reduce the burden of doing ठीक है जी. तो यहाँ क्या है कि आपके पास रेस्ट रूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गेमिंग जोन्स हैं, पार्किंग फैसिलिटीज हैं, फिर स्टोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं. फिर आपके पास एक ही रूफ के नीचे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हो. पी लीजिए, पी ली हुई है. ठीक है. So that is the another important benefit of doing business through departmental stores. Then buying made pleasant, same is these two are almost similar. Then self advertisements. Okay, so these stores are advertising at a larger scale. A name of the store is being advertised, as a result of which every other facility which is available over there that gets advertised. तो जो cost of advertisement है वो भी कम हो जाती है कि आपने 20 different types of businesses के लिए एक एडवर्टीजमेंट दे दी, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एडवर्टीजमेंट, स्टोर की एडवर्टीजमेंट दे दी जिसमें हर कुछ अवेलेबल है. तो जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती थी वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, एंड दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. देन देयर इज सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. ओके, दीज आर लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस. सेंट्रल प्लेस मतलब ऐसे सेंट्रल प्लेस पे वेयर यू हैव टू ड्राइव डाउन एंड रीच टू दैट पर्टिकुलर okay, you have to drive down to these and okay, so here you have to reach to a centralized location, and you have to do the buying and selling activity, buying activities over there. तो ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, मतलब नेबरहुड शॉप नहीं है, बट ऐसी सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ जो अफोर्डेबल, इजीली अप्रोचेबल है. मतलब
5 to 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी आपको मतलब आपके रेजिडेंशियल एरिया से मिलेगी, और हर जगह से वो 5 से 7 किलोमीटर की अप्रोच एरिया होगा। तो दैट इज व्हाट द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इज, a location where they can have the parking facilities and can handle a huge load of population for carrying out the buying activity. That is the centralized location. Then there is a professional management. There is a team of professional managers, means there are chartered accountants, company secretaries, then you have the managers, deputy managers, then board of directors. So all these people are and working together as a team, and that is helping in getting the required targets accomplished for these stores. अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस में। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। हम एक जगह तो कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल है, बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी अवेलेबल है जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जैसे आजकल पेंडेमिक है तो कुछ स्टोर्स की फंक्शनिंग, जैसे अब आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इनकी सेल एकदम से ड्रॉप डाउन कर गई और सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स की सेल्स चल रही थी। तो फिजिकल स्टोर्स की जब आपकी सेल्स ड्रॉप करती है तो पर हेड जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ वियर एंड टीयर के है। आपको बहुत सारा स्टाफ चाहिए फॉर हैंडलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, थेफ्ट के चांसेस ज्यादा हैं, मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। कई बार कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो ऑब्सोलीट नेचर का होता है एंड दैट इज नॉट in demand from the customers, so you have to bear that loss also. Okay, तो ये आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं जिसके कारण आपकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, और अगर आपकी एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं आई जितनी आपको एक्सपेक्टेड थी तो इट विल ऐड इनटू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। Unsuitable location है that you have to specially drive down to a particular location and then only you can carry out the buying and selling activity, and that is why it is being considered as located in unsuitable locations. Then there is lack of personal touch. Lack of personal touch is because that it is being managed by the employees who have no interest in expanding the interest of the company. They are coming there, they are doing their job, they are serving the organization as per the rules and regulation being defined by the organization, and then after that they are leaving without having any obligations towards the organization. तो ये क्या है, जो आपका अपना बिजनेस होता है उसमें आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यू run after the customer, but here you are not having any personal interest. You are being paid salary, even if you are doing extraordinarily excellent work, you will not get extra benefits from the companies, and that is the reason why the employees are least interested in pushing hard for increase in sales. Okay, then there is large amount of capital required for investment. You have to invest crores and crores of rupees for investment into such big huge stores, because first of all you have to have a big infrastructure, big warehousing, then you have to digitalize the whole system. So here huge amount of investment is required in infrastructure and then buying of the goods and various other facilities. तो यहाँ पे जो पैसा required है आपको एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए comparatively बहुत ज्यादा चाहिए. That is the problem with these stores. Okay, अब नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट है आपके मल्टीपल चेन स्टोर्स. मल्टीपल चेन स्टोर्स वो स्टोर्स हैं जो एक तरह का प्रोडक्ट थ्रू स्मॉल रिटेल शॉप्स पूरे कंट्री में बेच रहे हैं, और उनके क्या कहते हैं एक सिटी में कई स्टोर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके स्टोर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैकडी, केएफसी या बर्गर किंग या स्टारबक्स या कैफे कॉफी डे,
तो जिस तरह से डिमांड है उस तरह से इन स्टोर्स के फ्रेंचाइजीज अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा डिमांड में, उतनी ज्यादा नंबर में वो स्टोर्स अवेलेबल होंगे। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेकेंडली इनकी खासियत क्या है कि इनका जो मेनू है या जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर सिटी में वो सेम रहते हैं एट ऑल द स्टोर्स। यू विल नॉट फाइंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर्स। ओके, so they have categorized themselves in three categories: A, B, C, and A grade city, B grade city, C grade city, and the menu or the products which are available at different cities are available as per the categorization। मगर उसमें क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। ओके, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे विद इन ए सिटी, ओके, विद इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी एरिया। And another important thing is that these are working like joint stock companies as departmental stores. These are also working like joint stock companies. These have a board of directors, the managers, and वेरियस अदर इंडिविजुअल। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आपके पास है जिस पे ये काम कर रही है। ओके, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो इसको हैंडल करते हैं। तो ये आपके पास है। सो दीज आर वर्किंग सेंट्रली owned and operated under a single management, that is what the multiple chain stores are. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, that is features of multiple chain stores. First feature of multiple chain store is that these are centrally managed and controlled। तो एक हेड ऑफिस है, वही इनके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहा है, वही इनके लिए परचेसिंग और इनके लिए एडवर्टीजमेंट और वेरियस अदर एक्टिविटीज को डिसाइड कर रहा है। तो ये सेंट्रली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होगी इसमें। तो ये सबसे पहला फीचर तो ये है। दूसरा क्या है, स्पेशलाइजेशन होती है इनकी एक पर्टिकुलर या फ्यू प्रोडक्ट्स में। जैसे आप देखोगे बर्गर किंग अपने एरिया में स्पेशलिस्ट है और जो मैकडोनल्ड्स है या सबवे है वो अपने एरिया में है। उनके पास मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस नहीं है कि वो एक ग्रोसरी शॉप की तरह या जनरल स्टोर की तरह काम नहीं करते कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट उसी में ही डिफरेंशिएशंस आपको मिलेंगी, बट उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। अगर मेंस प्रोडक्ट के लिए एक स्टोर चल रहा है तो उसमें सिर्फ मेंस प्रोडक्ट मिलेंगे और उनके जो मेनू है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जो उसकी लाइन है, प्रोडक्ट लाइन है, वो सेम रहेगी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज that they are dealing in standardized commodity, मतलब प्राइस, डिजाइन, पैटर्न, क्वालिटी, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होंगी, स्टैंडर्डाइज्ड होंगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। ये these are not selling products मेड फॉर डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस कर दिया एंड अकॉर्डिंगली दोज प्रोडक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो स्टैंडर्डाइज्ड इनका कमोडिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, अनदर इज सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग। ये तो हमने कर लिया था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस है वो बाइंग एक्टिविटी करता है और फिर थ्रू मल्टीपल चेन स्टोर्स वो डिसेंट्रलाइज सेलिंग करता है। तो ये आपके पास है, लोकल परचेजेस नहीं होती है, यहाँ पे हेड ऑफिस ही सारा कुछ करता है। और यहाँ पे अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है कि दैट दे आर डूइंग सेल्स ओनली ऑन कैश बेसिस। कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जैसे मॉम एंड पॉप शॉप्स पे होता है या नेबरहुड शॉप्स पे होता है, इसमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, कैश कैरी प्रिंसिपल के ऊपर जो चलते हैं, तो ये है इसका अनदर इम्पोर्टेंट फीचर। ओके, देन अनदर इज देन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो इन स्टोर्स की है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, जो विंडो डिस्प्ले होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो क्योंकि सारे स्टोर्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है शॉप्स की वो एक तरह से होगी। जैसे मैकडोनल्ड्स का एम है तो वो एम ही दिखेगा, सबवे का एस है तो वो एस ही दिखेगा। उसमें शेप चेंज होती जा रही है तो सारे स्टोर्स पे सेम शेप आ जाएगी।
जैसे गूगल ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, शेप चेंज किया, तो वो सारे स्टोर्स जो गूगल के साथ डील कर रहे हैं उनके ऊपर गूगल का पैटर्न चेंज हुआ दिखेगा आपको। तो ये क्या है कि कॉमन एडवर्टीजमेंट, कॉमन विंडो डिस्प्लेइंग सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन ऑल दीज मल्टीपल शॉप्स। ओके, देन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। मान लीजिए कि एक जगह डिमांड कम है और दूसरी जगह डिमांड ज्यादा है, तो जहां डिमांड कम है वहां से प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है जहां डिमांड ज्यादा है। सो इन दिस वे द गुड्स कैन इजीली बी मूव फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर in the hour of need, and that helps in saving the wastage of the resources, because the areas where there is heavy demand, the goods are being transferred from the low demand areas to the high demand areas, and that is how the movement of the goods is being done in the branches. Okay, अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके पास, के लो प्राइसेस हैं इनकी, मतलब कंपैरेटिवली जो आपके पास दूसरी कंपनीज के, क्योंकि इनकी लार्ज स्केल के बाइंग है, लार्ज स्केल पे सेलिंग है, तो इनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, दस द पर यूनिट कॉस्ट फॉर देम इज कंपैरेटिवली लेस। ओके, तो और इनकी एडवर्टीजमेंट कलेक्टिव होती है, कोई इंडिविजुअल स्टोर की अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक सेंट्रल एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट डेवलप्ड है and that is being used, thus it also reduces the cost of advertisement too. Okay, then there is stock transfer is possible, means if there is demand in some areas and there is no demand in other areas, so from no demand areas to high demand areas the goods can be easily transferred. That is what the specialization is. Another important advantage is that they are doing sales on the cash basis, thus there is no chances of bad debts and various other aspects. मगर इसका एक लिमिटेशन है कि कैश सेल से आपकी जो टोटल सेल है वो कंपैरेटिवली कम रह जाती है जो क्रेडिट सेल से बढ़ती है। फिर है बेनिफिशियल लोकेशंस, दीज आर लोकेटेड इन दोज एरियाज वेयर इट इज बेनिफिशियल टू रन दी स्टोर्स। जैसे अब सबवे हिसार में जो सबवे अवेलेबल था वो अर्बन स्टेट मार्केट में से शिफ्ट करके उन्होंने मैकडोनल्ड्स के नेक्स्ट दे हैव ओपन देयर स्टोर, बिकॉज midtown area is more lucrative area as compared to the area where it was earlier. So they try to find out the most probable area where the sales can be increased and more customer can be attracted. Another important thing is that these are having fixed prices. The prices in these are not negotiable as in case of the neighborhood shops are there. तो ये एक another important aspect है, and they compensate each other के एक store अगर fail कर गया, अब अगर बाकी काम कर रहे हैं, so they compensate each other for the losses they have suffered. Okay, अब आ जाओ disadvantage। इन स्टोर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि कंट्री वाइड में इन स्टोर्स को आपने एस्टेब्लिश करना है, सो यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टिंग सच टाइप ऑफ स्टोर्स। सेकंड इज देयर इज लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, एम्प्लॉइज, द पीपल हु आर वर्किंग इन दीज स्टोर्स आर एम्प्लॉइज एंड दे हैव देयर ओन पर्सनल requirements to be fulfilled, as a result of which and they are paying less attention. If the company is giving them due benefits, they are giving more attention towards the sale and benefit of the company. If the company is not providing them the extraordinary benefits or such benefits, so they are also not putting their best of effort in getting the sales in these stores. तो ये आपके पास another important aspect है। देन देर इज लैक ऑफ वेराइटी ऑफ कॉमोडिटीज, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर एरिया में आप काम करते हो, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे काम करते हो, तो आपका जो फैसिलिटीज हैं डिफरेंट कॉमोडिटीज वो नहीं अवेलेबल। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज, इस तरीके से आपको गुड्स अवेलेबल होते हैं। फिर देर इज रिजिडिटी। ओके, कि आपने एक बार जो मेनू डिसाइड कर दिया सेंट्रल हेड ऑफिस ने, वही आपको फॉलो करना है। मान लीजिए कि आपने बीफ सेल कर रहे हो,
मगर बीफ की डिमांड इंडिया में कम हो रही है, तो अगर हेड ऑफिस उसको चेंज नहीं करेगा, दे हैव टू सेल इट एंड इट बिकम्स ए लायबिलिटी ऑन टू द स्टोर। तो ये रिजिड होते हैं, क्योंकि आपको हर बार ये सेंट्रल ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड व्हाट न्यू सॉल्यूशंस कैन बी गिवन। तो ये सेंट्रल बॉडी बताती है, तो ये आपकी रिजिडिटी को बढ़ाती है। और अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इन स्टोर्स में। ओके, तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है इन स्टोर्स की, दैट दे आर सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस। तो एक ये लिमिटेशन की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इफ you have the credit facilities available, the more and more customer will get attracted and more sales will be possible. But if the credit facilities are not being made available, so people will shirk and they will not come to your store for buying the goods and services. तो ये एक प्रॉब्लम है इन स्टोर्स के साथ। ओके, सो हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस है, सो यू कैन रीड दिस डिफरेंस, variety of products and customer services, location. I have given this PPT. Okay, and another is what are mail order houses. We'll do it tomorrow. Thanks.